يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا رسول يا نبي الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. الله تبارك وتعالى جل جلاله وأكرمه وعظم شأنه وأتم برهانه بالصلاة والرسول حضور اکرم نور مجسم شفیع محشر والے کوثر محبوب دلبر احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار و دربار میں ہدیۃً تحفۃً محبۃً عقیدۃً درود و سلام عرض کرنے کے بعد میرے نہایت ہی واجب الاحترام برادران اسلام معزز محتشم بزرگوں بچوں عزت معاف کرنا فرما گھر میں موجود ماں بہنوں کا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت کا کروڑواں مرتبہ شکر ہے کہ جس خالق کائنات نے مجھے اور آپ کو رب ذوالجلال نے اپنے حبیب کے دین قدیم کی فقاہت عطا فرمائی۔ خالق کائنات نے مجھے اور آپ سب کو اپنے حبیب کی امت میں پیدا فرمایا۔ امت میں پیدا فرمانے کے بعد رب کائنات نے مجھے اور آپ کو اہل اسلام کا گھرانہ عطا فرمایا۔ اس سے بھی بڑھ کر رب کائنات کا اس بات پر شکر ادا کرتے ہیں کہ رب کائنات نے مجھے اور آپ کو اپنے نبی کے غلاموں میں جگہ عطا فرمایا۔ آج کا جمعہ کا سلسلہ ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ بلا فصل اس امت کے پہلے خلیفہ ہیں، فضیلت کے لحاظ سے بھی انبیاء کے بعد پوری کائنات میں افضل ہیں، اور خلافت کے بھی لحاظ سے اللہ کے حبیب کے بعد جن کو پہلی خلافت ملی رب کے حبیب سے انہی کو حضرت ابوبکر صدیق کہا جاتا ہے۔ آپ کا مقام و مرتبہ قرآن و سنت میں بڑا ہی جدا بنا ہے، بڑا بڑا ہے کہ جن کو لفظوں میں بیان کرنا یہ کوئی آسان کام نہیں۔ آپ کی فضیلت، آپ کا مرتبہ، آپ کا شان، میں تو یوں کہتا ہوں کہ جس کی عظمت کو خود رب ذوالجلال بیان کرے اس کی شان کو کون بیان کر سکتا ہے؟ اور آپ ایسے صحابی ہیں کہ جن کی صحابیت کا انکار کرنا کفر ہے۔ آپ کی صحابیت جو ہے وہ رب کے قرآن سے بھی ثابت ہے، مصطفیٰ کریم کے فرمان سے بھی ثابت ہے۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ تعالی نے یہ مقام و مرتبہ عطا فرمایا ہے کہ یاد رکھیں، ویسے تو ہر صحابی کا بڑا مقام ہے، ہمیں تو وہ اپنے حبیب کا فرمان یاد ہے۔ میرے حبیب نے فرمایا من سبا اصحابی، کہ جو بندہ میرے اصحاب کے بارے میں زبان درازی کرے فاضربوہ، اس کو کوڑے لگاؤ، من سبا نبی فقتلوہ، جو میرے بارے میں بکواس کرے اس کو اس کی گردن اڑا دو۔ اور ایک حدیث میں میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے اصحاب کے بارے میں زبان کو سنبھال کر بات کیا کرو۔ آپ کو پتہ نہیں کہ میرے اصحاب کے بارے میں ذرا عقیدہ سننا، کہ میرے اصحاب کے بارے میں زبان سنبھال کر بات کرنا، کہ ان کو یہ مقام حاصل ہے۔ اگر قیامت تک آنے والا کوئی مسلمان بندہ چاہے ساری زندگی سجدے میں رہا ہو، ساری زندگی رکوع میں رہا ہو، ساری زندگی قرآن پڑھنے والا ہو، ساری زندگی حدیث پڑھانے والا ہو، لیکن یاد رکھے میرے اصحاب میں سے کوئی ادنا صحابی، ادنے سے مراد یہ ہے مقام میں سے، جس طرح دل کا رسول فضل اللہ بعدہم علی بعد، فرمایا رسول بہت زیادہ ہے لیکن بعد کو بعد پر ہم نے فضیلت عطا فرمائی ہے۔ صحابہ کا بھی اسی طرح مقام و مرتبے ہیں، بعض صحابہ کو بعد پر فضیلت حاصل ہے۔ فرمایا میرے اصحاب میں سے کوئی ادنے مقام کا صحابی اگر مٹھی پر جو رب کے راستے میں خرچ کرے اور وہ سجدے میں رہنے والا نمازی ہو، وہ قرآن پڑھنے والا قاری ہو، وہ حالت رکوع میں ساری
की मिसल सोना हम के रस्ते में खर्च करें, फरमाया मेरे सहाबी की मुट्ठी भर जौ की बराबरी भी नहीं हो कर सकता। तो हमें तो ये भी फरमान याद है, लेकिन ये तो हर सहाबी का मकाम है। और फिर वो सहाबी अरे जिनको अल्लाह ताला ने सारे सहाबा में से मकाम अता फरमाया है, और आपको ये निस्बत हासिल है। अल्लाह ताला ने हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को ये मकाम अता फरमाया है। आप असहाब में से वो सहाबी हैं कि जिनकी 4 पुश्तों तक अल्लाह ताला ने सहाबियत का मर्तबा अता फरमाया है। 4 पुश्तें आपकी सहाबा थी, यानी हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आपको ये एजाज हासिल था कि आप खुद भी सहाबी थे, आपके वालिदैन भी सहाबी थे, आपके बेटे भी सहाबी थे और आपके पोते भी सहाबी थे। और ये शान अल्लाह ताला ने आपके अलावा किसी को नहीं अता फरमाई। यानी 4 पुश्तों तक अल्लाह ताला ने सहाबियत का मर्तबा जिनको अता फरमाया था उन्हीं को अबू बकर सिद्दीक कहा है। सुभान अल्लाह। ये कोई मामूली बात नहीं, सहाबी होना ये कोई सहाबी, याद रखें नमाज पढ़ने से बंदा सहाबियत का मर्तबा हासिल नहीं कर सकता, कुरान पढ़ने से नमाज पढ़ने से बंदा वो मुकाम हासिल नहीं कर सकता। सहाबी जो है वो निगाह मुस्तफा की वजह से होता है। जिस पर निगाह मुस्तफा पड़ जाए और ईमान की हालत में उसने चेहरा वतुहा देखा हो और ईमान की हालत में मुस्तफा करीम का चेहरा देखा हो, जिसने ईमान की हालत में मेरे महबूब का चेहरा देखा हो, उसी ईमान की हिफाजत करते हुए जान कुर्बान करते उसी को सहाबियत कहा जाता है। और सहाबा में से सबसे बड़े मकाम वाले हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जिनको ये मकाम मर्तबा हासिल है। बुखारी शरीफ के अल्फाज हैं, मेरे और आपके आका ने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मकसद रहो नहीं यंजुर इला रजुल मिन अहल जन्नह फलयंजुर इला हादा। मेरे हबीब ने फरमाया जिस शख्स को ये बात पसंद है कि वो ऐसे शख्स को देखे कि जिसको अल्लाह ताला ने दुनिया में जन्नत अता फरमाई हो। सुभान अल्लाह। भाई हजारों नमाज़ें पढ़ें, हजारों ज़कात अदा करें, लेकिन कोई बंदा ये दावा नहीं कर सकता कि मैं जन्नती हूँ। हमेशा ये कहेगा मालिक ये जो मेरी थोड़ी सी ये बातें हैं इसको कबूल फरमा, अपने रहम से मुझे जन्नत अता फरमा। मेरे हबीब ने फरमाया मन शक्कहु अन यंजुर इला रजुल मिन अहल जन्नह फलयंजुर इला हादा। फरमाया जो बंदा इस बात को पसंद फरमाता है, जो बंदा ये ख्वाहिश रखता है कि ऐसे शख्स को देखे अरे जिसको अल्लाह ताला ने दोज़ख से आज़ाद फरमा दिया हो, अरे जिसको जन्नत का सर्टिफिकेट मिल गया हो, तो मेरे हबीब ने फरमाया फलयंजुर इला हादा। अबू बकर सिद्दीक को देख ले, ये वो सहाबी हैं जिनको अल्लाह ताला ने के हबीब ने दुनिया में जन्नत का सर्टिफिकेट अता फरमाया। सुभान अल्लाह। ऐसे तो हर सहाबी जन्नती है, हर सहाबी जिसने कलमा पढ़ा, मेरे नबी का ईमान लाया, मेरे हबीब की ज़ियारत की, ईमान की हालत में दुनिया से चले गए, हर सहाबी जन्नती है। लेकिन बाद सहाबा को बार बार फजीलत हासिल है। सबसे मकाम वाले जो सहाबा हैं उनमें से सबसे ज्यादा जिनको फजीलत हासिल है उनको अबू बकर सिद्दीक कहा जाता है। और फिर हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का ये मकाम मर्तबा मैंने अल्लाह जल्ल जलालहू के प्यारे कलाम कुरान मजीद फुरकान हमीद से एक आयत करीमा पढ़ने का शरफ हासिल किया है। रब कायनात ने फरमाया वल्लज़ी जाअ बिस्सिद्क़ वसद्दक़ बिही उलाइका हुमुल मुत्तक़ून। फरमाया बे अल्लज़ी बोज़ा वल्लज़ी बोज़ा जाअ बिस्सिद्क़, जो सच को लेकर आई, वसद्दक़ बिही, और दूसरी वो जात जिसने उस सच लाने वाली जात की तस्दीक की, उलाइका हुमुल मुत्तक़ून। रब कायनात ने फरमाया यही डर वाले लोग हैं। तो उलमा ने इस बात की वाले तौर पर वज़ाहत फरमाई वल्लज़ी जाअ बिस्सिद्क़, कि वो जो सच को लेकर आने वाली जात है वो कोई और नहीं, वो रब के प्यारे हबीब हैं, मदीने के ताबेदार हैं जो सच को लेकर आए। इसीलिए तो जब मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबुव्वत फरमाया, कुफार को इकट्ठा किया, तो फरमाने लगे मेरे हबीब क्या मैं
फौज है जो तुम पर हमला करने वाली है, इस बात को मानोगे? उन्होंने कहा हम तस्लीम करेंगे, क्योंकि हमने आपकी जुबान से कभी भी झूठ नहीं सुना। जब भी आपने लफ्ज खोले हैं, रब्बे कायनात ने आपकी जुबान से कुरान को नाज़िल करवाया। तो ये मकाम था मेरे हबीब का। तो अल्लाह ने कहा इससे वो ज़ात तो जो सच को लेकर आए, मेरे हबीब की ज़ात पसंद आता है। मुफस्सिरीन किराम लिखते हैं जो सच को लेकर आए वो हबीब हैं, और जिसने उस सच की तस्दीक की उनको हजरत अबू बकर सिद्दीक कहा जाता है। वैसे तो क़यामत तक आने वाला हर मुसलमान इस आयत के तहत शामिल है, यानी हजारों लाखों लोग इसमें शरीक हैं कि जिसने मेरे हबीब के आने की खबर पर कलमा बड़ा ईमान ले आया। अब ये देखना, हमने देखा भी नहीं अपने हबीब को, हमने बातें सुनी उलमा से, फुज़ला से, मुहद्दिसीन से, लेकिन हमने पूरे यकीन के साथ उन बातों को यकीन रख कर मान लिया कि वो एक वहदहू ला शरीक है, जिसने अपना प्यारा हबीब हमें अता फरमाया है। तो हम भी इस आयत में शामिल हैं कि वो ज़ात के जो सच को लेकर आए और जिन्होंने उनकी तस्दीक की, यानी जो मेरे हबीब लेकर आए वो मांगे तो हम उसको मान गए, तो मेरे रब्बे कायनात ने फरमाया यही लोग कामयाब हैं। तो क़यामत तक आने वाला हर मुसलमान इस आयत में शामिल है। लेकिन याद रखें, जिस अंदाज में हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कलमा पढ़ा है, जिस अंदाज में हजरत अबू बकर सिद्दीक ने मेरे हबीब की तस्दीक की है, वो अंदाज निराला है। वो अंदाज क़यामत तक किसी मुसलमान को नसीब नहीं होगा। मैं यहाँ एक बात अर्ज करता चला जाऊं, क्या अंदाज था हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का। हजरत उम्मे हानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है कि जिस वक्त रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिराज के सफर से वापस तशरीफ लाए, तो कुरैश के सामने आपने ऐलान फरमाया कि मैं मिराज पर तशरीफ ले गया था, मैंने रब्बे जुल जलाल का दीदार किया है। आज भी कुछ बदबख्त हैं जो मेरे नबी के मिराज का इनकार करते हैं। मैंने कहा ये मुकद्दर की बात है, आगे वाक़या सुने, इंशाअल्लाह बड़ा अकीदा वाले होगा। मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिराज से जब वापस तशरीफ लाए, आकर ये ऐलान फरमाया कि रात के थोड़े से हिस्से में मैंने अर्श मुअल्ला की सैर की, सिदरतुल मुंतहा पर गया, हत्ता कि मैंने रब्बे जुल जलाल का दीदार किया। जब आपने ये ऐलान किया, वहाँ जो काफिर थे कुरैश मक्का, उन्होंने इनकार कर दिया, उन्होंने तरह तरह की बातें करना शुरू कर दी कि ये कैसे हो सकता है कि एक शख्स रातों रात इतनी लंबी सैर करे और ये दावा है कि मैं रब को देखकर आया हूँ, ये कैसे मुमकिन है। कुरैश कुफार ने ये तरह तरह की बातें बनाना शुरू की और ये खबर हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तक पहुंची। अभी हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बज़ाहिर इस बात का इल्म नहीं था कि मेरे हबीब मिराज पर गए हैं। ये देखिए मानने का अंदाज, इसको कहते हैं सदीक़ अकबर, तस्दीक करने वाला। बज़ाहिर हजरत अबू बकर सिद्दीक तक ये खबर नहीं पहुंची थी कि मेरे हबीब मिराज का सफर करके आए हैं। अब कुफार तक जब ये खबर पहुंची ना, उन्होंने तरह तरह की बातें की, ये कैसे मुमकिन है, ये कैसे मुमकिन है कि एक शख्स रात को इतने थोड़े से हिस्से में इतनी लंबी सैर करके आए, तो ये कैसे मुमकिन है। उन्होंने तरह तरह की बातें बनाई। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास चले गए। अबू जहल जब हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास गया तो उसने कहा कि अगर कोई बंदा ये दावा करे, अब उसका अंदाज देखिए अबू जहल का, अगर कोई बंदा ये दावा करे कि मैं रात के कुछ हिस्से में मस्जिद अक्सा में गया हूँ, रात के कुछ हिस्से में मैं अर्श मुअल्ला तक पहुंचा हूँ, रात के कुछ हिस्से में मैं रब का दीदार करके आया हूँ, अगर कोई कहे ऐ सिद्दीक बताओ तो सही तुम यकीन करते हो। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया जी ये तो मुमकिन नहीं कि रात के थोड़े से हिस्से में इतनी मंजिलें कोई तय करे। तो अब अबू जहल बोला, जब हजरत अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया ना कि ये तो
कहने लगा तो फिर जिसका तुम कलमा पढ़ते हो ये वही है जिन्होंने दावा किया। अब हजरत अबू बकर सिद्दीक का जवाब सुनिए। बज़ाहिर खबर देने वाला अबू जहल था, बज़ाहिर खबर देने वाले वो काफिर थे, लेकिन जब सुना ना इसमें शान मुस्तफा है, फरमाया ऐ काफिरों तुम क्या जानो मकाम मुस्तफा, ये सफर ये बुलंदियां ये कुछ भी नहीं, अगर मेरे हबीब इससे बड़ा भी दावा करे। सिद्दीक बगैर तहकीक के उनको मानने के लिए तैयार। ये है वल्लज़ी जाअ बिस्सिद्क़ व सद्दक़ बिही, कि वो लोग जिन्होंने मेरे मुस्तफा की तस्दीक की है। सिद्दीक उनमें से है, माना हमने भी है, देख हमने भी कुरान पढ़ा है, लेकिन खुदा की कसम है कुफार की मौजूदगी में जिस अंदाज से हजरत अबू बकर सिद्दीक ने मेरे मुस्तफा की तस्दीक की है वो दावा है। ये देख ले अबू जहल खबर देने वाला, ये भी तो हो सकता था ना मैं झूठ बोल रहा हूँ, लेकिन आपने ये नहीं देखा कि खबर देने वाला कौन है। आपने ये नहीं देखा कि खबर देने वाला कौन है, जिसने खबर दी उसके पास मौजूद कौन है। आपने ये देखा है खबर दे किसकी रहा है। अरे ये तो वो हबीब हैं, अरे जिनकी पैदाइश के वक्त अरे जो पंगूड़े में मौजूद थे, ये तो वो हबीब हैं कि हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं मैं क्या देखता हूँ, अल-मसाजिद कुबरा में ये बात मौजूद है। मेरे आप फरमाते हैं मैं गौर करता हूँ, मैंने चांद की तरफ देखा, वो कभी इधर जाता है कभी उधर जाता है। अरे हमारे घर में भी बेटे आते हैं, हमारे घर में भी बड़े बड़े प्यारे हसीन लाल आते हैं, लेकिन सदके जाए आमला के लाल से, सदके जाए अरे वो अरब शरीफ के दिलदार से। हजरत अब्बास फरमाते हैं मैं गौर करता हूँ, कभी चांद इधर जाता है कभी उधर जाता है, कई मर्तबा मैंने गौर किया, अचानक मेरी नजर पड़ी कि वो मेरे हबीब आमना के लाल वो पंगूड़े में लेट कर अपनी उंगली को हिलाते हैं। अरे हमारे बच्चे मेलों से खिलौने लेकर आते हैं, रब्बे कायनात ने चांद को अपने हबीब का खिलौना बना दिया। ये अज़मत और मकाम, ये मकाम और मर्तबा मेरे हबीब का कौन इस तक पहुंच सकता है। वो हजरत अबू बकर सिद्दीक आप फरमाने लगे तुम क्या जानो मेरे नबी की शान। पूछे हजरत अब्बास से, वो चांद भी जिनका खिलौना बनकर उंगली के सहारे इधर उधर घूम रहा था, वो सूरज अरे जिस पर रब्बे कायनात के हुक्म के तहत किसी का हुक्म नहीं चलता, रब्बे कायनात के हुक्म के अलावा, लेकिन मेरे हबीब ने उसी सूरज को वापस बुलाया। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने असर की नमाज अदा की। ये पत्थर जो बोलते नहीं, अरे काफिरो तुम क्या जानो मेरे नबी का मकाम, ये पत्थर आज तक किसी ने बोलते नहीं देखा। वही अबू जहल जिसकी मुट्ठी में कलमे पढ़ाए मेरे मुसलमान। अरे वो दरख्त आज तक कभी किसी ने दरख्त को चलते नहीं देखा। ये मुस्तफा करीम की जात है जिनकी कदमों तक वो दरख्त चल के सलाम पढ़ते हुए हाजिर होते हैं। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का अंदाज निराला था। आप फरमाने लगे तुम क्या जानो शान मुस्तफा, ये मिराज का सफर ये कुछ भी नहीं, अगर मेरे हबीब इससे भी बड़ा दावा करते तो मैं सिद्दीक ये ऐलान करता हूँ कि मैं उसकी तस्दीक करने वाला। ये मकाम था हजरत अबू बकर सिद्दीक था, ये वफा थी उनकी, ये मोहब्बत थी। तो मेरे भाइयों हर सहाबी ने यकीनन मेरे और आपके आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जान निशावर की है, सब कुछ लुटाया है, लेकिन खुदा की कसम है जो अंदाज अबू बकर सिद्दीक का है ना, वो अल्लाह ताला ने किसी सहाबी को अता नहीं फरमाया। तिल का रसूल फद्दल बअदहुम अला बअद, यानी रसूलों में से सब हर रसूल अफजल है, हर नबी अफजल है, लेकिन फरमाया बाद को बाद पर फजीलत हासिल है। इसी तरह सहाबा में से हर सहाबी अफजल है। अंबिया में से किसी नबी की गुस्ताखी करना जायज नहीं। जौक से बोलिए किसी नबी की गुस्ताखी करना जायज नहीं। लेकिन अंबिया के मकामों मर्तबे हैं, हर नबी एक दूसरे से मकाम से जुदा गाना है, किसी नबी को किसी पर फजीलत हासिल है, लेकिन अकीदा ये है, मोहब्बत ये है, फजीलत बिल्कुल हासिल है, लेकिन किसी नबी की गुस्ताखी करना जायज नहीं। हर सहाबी अफजल है, सहाबा में से हर सहाबी को एक दूसरे का फजीलत के लिहाज से मकाम हासिल है, लेकिन कतअन ये जायज नहीं कि कोई नबी की उम्मत में से
کوئی بندہ اپنے علم کی وجہ سے کسی صحابی پر انگلی اٹھائے تو یاد رکھیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے یعنی آپ کے بارے میں کوئی اگر ایسی باتیں کرتا ہے تو یاد رکھیں ایسے بندے کے پیچھے نماز پڑھنا جائز نہیں، جو صحابہ کا گستاخ ہو، جو میرے مصطفیٰ کے گرانے کا گستاخ ہو، ایسے بندے کے پیچھے نماز جائز نہیں ہے، نہ نمازہ جائز ہے نہ اس کی نماز جائز ہے۔ تو ہر صحابی کا مقام و مرتبہ بڑا جدا بانے ہے، لیکن جو مقام اللہ تعالیٰ کے حبیب کی حدیثوں اور قرآن سے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا ہے، وہ مقام اللہ تعالیٰ نے کسی صحابی کو عطا نہیں فرمایا۔ یہ باتیں شان صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے بھی آپ کئی مرتبہ سن چکے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ جنگ کے موقع پر رب کائنات کے حبیب نے صحابہ کو اعلان فرمایا کہ آپ اپنا اپنا مال جمع کروائیں جنگ کے لیے۔ تو ہر صحابی نے اپنا اپنا مال لے کر آئے، اور یہ یاد رکھیں وہ صحابہ تھے رب کی رضا کے لیے۔ جب کوئی بھی موقع ہوتا نا صحابہ کی کوشش ہوتی تھی کہ ایک دوسرے سے نیکی کے کام میں بڑھ جانے کی۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ جو وقت تھا نا اس وقت میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس یہ دنیا کے لحاظ سے مال اتنا وسیع نہیں تھا۔ تو میرے دل میں خیال آیا میرے پاس مال کافی ہے، آج میں مال زیادہ دیتا ہوں اور مرتبے کے لحاظ سے آج میں فضیلت حاصل کر جاؤں گا۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہر صحابی نے اپنا اپنا مال لے کر آئے، میں لے کر آیا، میرے حبیب نے فرمایا کیا لے کر آئے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ گھر کا آدھا سامان لے کر آیا ہوں۔ جی کچھ عرصے کے بعد حضرت ابو بکر صدیق آئے، دیا سامنے ہے، یاد رکھیں دیا سامنے ہے، یہ سارا صدیق نے لیا ہے۔ کچھ عرصے بعد کچھ دیر بعد حضرت ابو بکر صدیق تشریف لائے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرے دل میں یہ بات خیال تھا، یہ دل میں سوچ تھی کہ آج میرا مال زیادہ ہے میں بڑھ جاؤں گا، لیکن جب حضرت ابو بکر صدیق آئے نا میرے حبیب نے فرمایا صدیق کتنی دیر، یعنی اتنی دیر تو کیا لے کر آئے ہو؟ تو عرض کی یا رسول اللہ گھر کا سارا سامان لے کر آپ کی پاس حاضر ہو چکا، تو گھر والوں کے لیے رب اور اس کا رسول چھوڑ کر آیا ہوں، سارا سامان لے کر آپ کے پاس آیا ہوں۔ دیا سب صحابہ نے ہے، ہر صحابی نے اپنی اپنی یعنی طاقت کے مطابق اپنی توفیق سے بڑھ کر اپنے حبیب کے سامنے اپنا مال رکھا۔ دیا سب ہے لیکن سارا صدیق نے دیا ہے، دیا سب نے ہے لیکن سارا صدیق نے دیا ہے، اور اسی وجہ سے مقام سب کا ہے لیکن سارا مقام اللہ تعالیٰ نے صدیق کو عطا فرمایا۔ ہر صحابی کا مقام و مرتبہ بڑا ہے، لیکن جو مقام و مرتبہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا ہے وہ مقام کسی صحابی کو حاصل نہیں ہے۔ سب سے فضیلت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہے۔ اسی طرح میرے رب کے آقا لجپال آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ایک مرتبہ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آسمان کے ستارے بڑے ہی روشن میں تھے، میں نے عرض کی یا رسول اللہ کیا کوئی ایسا شخص ہے دنیا میں جس کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر ہوں؟ سبحان اللہ، ستارے کو گر نہیں سکتا، ستارے تو بڑی بلندی پر ہے نا، بندہ اپنے جو ہاتھ کے بال ہیں ان کو نہیں گر سکتا۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کوئی ایسا شخص ہے جس کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر ہوں؟ بڑی قابل غور بات ہے۔ آج لوگ چھوٹے چھوٹے جن کو قرآن کی ایک سورت تک نہیں آتی صحابہ سے کی ذات پر مختلف قسم کے اعتراض کرتے ہیں، اور بڑے افسوس کی بات ہے کہ وہ کہتے ہیں نا کلمہ سیدھا آئے نا
आसमान के सितारों के बराबर किसी की नेकियां जी मौजूद है। अर्ज की वो कौन है? हजरत आयशा सिद्दीका के दिल में ये ख्याल था कि शायद वो हजरत अबू बकर सिद्दीक का नाम होगा। आप साहबजादी थी ना, दिल में ख्याल था कि शायद मेरे हबीब मेरे बाबा जान का नाम लेंगे, लेकिन मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ मेरी प्यारी खतून आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के आसमान के सितारों से भी बढ़कर अरे जिस सहाबी की नेकियां हैं अरे उसको उमर बिन खत्ताब कहा जाता है। हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु तआला अन्हा कुछ मायूस हो गई, क्योंकि दिल में ये था कि शायद प्यारे हबीब मेरे बाबा जान का नाम लेंगे। कुछ मायूसी आ गई। अर्ज की मेरे हबीब ने फरमाया, आयशा सिद्दीका बताओ तो सही चेहरा क्यों यानी गमगीन हो चुका है? अर्ज की असल में बात ये थी, मेरे दिल में ये ख्याल था कि शायद आप मेरे बाबा जान का नाम लेंगे। मेरे हबीब ने फरमाया, आयशा सिद्दीका क्या बात करती हो, आसमान के सितारों से बढ़कर अरे उमर बिन खत्ताब की नेकियां हैं, अरे उमर बिन खत्ताब की पूरी जिंदगी की नेकियां एक तरफ, अरे जो रात अल्लाह ताला ने सदीक को मेरे साथ वार में गुजारने की तौफीक अता फरमाई है, उस एक रात की नेकी पूरी अब उमर बिन खत्ताब की जिंदगी से बढ़कर है। इसलिए हजरत उमर बिन खत्ताब 1000 मरतबा ये अर्ज करते थे, ऐ प्यारे सिद्दीक आप सारी जिंदगी की नेकियां ले लें, वो रात मुझे दे दे। अरे जिस रात में प्यारे हबीब ने आपको अपना कुर्ब अता फरमाया था। तो हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। तो बात करने का मकसद ये है, हजरत उमर बिन खत्ताब की नेकियां आसमान के सितारों से बढ़कर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की अजमत ये है। उमर बिन खत्ताब की सारी जिंदगी की नेकियां एक तरफ, सिद्दीक की एक नेकी बाकी है। जरा तवज्जो करना, अरे मैं कहना चाहता हूँ आसमान के सितारे कोई गिन नहीं सकता। आज तक कोई बंदा बताए कि जिसे पता हो आसमान के सितारे कितने हैं, तो उमर बिन खत्ताब की नेकियां आसमान के सितारों से भी बढ़कर हैं। मैंने कहा अरे आसमान के सितारे अगर गिनती में नहीं आ सकते तो पता चला उमर की नेकियां गिनती में नहीं आ सकती। अरे जहां उमर की नेकियां गिनती में नहीं आ सकती, अबू बकर सिद्दीक की एक नेकी का कोई बंदा मुकाबला नहीं कर सकता, तो पूरे उमर बिन अबू बकर सिद्दीक का मुकाबला नहीं करेगा। एक नेकी हजरत अबू बकर सिद्दीक की पूरी कायनात के हर शख्स से अफजल है। मुझे बताएं अल्लाह ताला ने हजरत अबू बकर सिद्दीक को क्या मुकाम दिया? तो याद रखें, जहां कहीं भी आप ऐसे सवाल सुने अरे जिनमें सहाबा के अदब पर एतराज हो, ऐसे सवालों जवाब आप वहां कंट्रोल करें, उनको रोकें कि यार तौबा करो, हम कहाँ वो कहाँ, उनका मुकाम मर्तबा कहाँ और हम कहाँ। रही बात इख्तिलाफात की, वो हमारा मकसद नहीं है, हमारा मकसद है उनके अजमत के प्रचार करना। इख्तिलाफात उनमें रहे सहाबा में, लेकिन इसका मकसद ये नहीं कि हम एक सहाबी के अजमत के नारे लगाएं और दूसरे पर कीचड़ उठा दें। ये याद रखें, हम में से अगर सारी जिंदगी कोई सजदे में रहने वाला हो, खुदा की कसम उसको मौत भी सजदे में आए, लेकिन मैं फिर भी यूं कहूंगा उसका मकाम जो सहाबा के कदमों के नीचे जो खाक है उसके बराबर भी नहीं हो सकता, क्योंकि सहाबा को जो इज्जत मिली है वो मेरे मुस्तफा के चेहरे की बरकत से। तो हमें जितनी भी शानें मिल जाए हम सहाबा के बराबर नहीं हो सकते, बराबर तो दूर की बात, उनके एक अमल का मुकाबला नहीं कर सकते। तो अगर बाद लोगों को ना सवाल करने की बड़ी जल्दी होती है, वो तकलीफ भी नहीं करते कि मैं सवाल क्या कर रहा हूँ, कई उल्टे सीधे सवाल पूछेंगे। ठीक है, एक मरतबा मुझे याद है, मैं हजरा में अल्लामा कारी मनीर साहब के पास बैठा था, उनको मैं दावत देने गया, वहाँ एक बंदा आया, पता नहीं कैसे कैसे सवाल ले आते हैं। उसने आकर सवाल किया, सब ये बताएं हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की नानी जान का नाम क्या है? उनकी नानी जान का नाम। और कुछ लोगों को वैसे ही सवाल करने की आदत होती है, ताकि आदमी दिन को कुछ जाए नहीं, वो तो खामोश रहे। लेकिन मैंने कहा, और मैंने यानी अपने अंदाज में उनको कहा मुझे बताएं क्या हमने उनकी यानी नानी जान का निकाह पढ़ा है जो हमें नाम पता होगा? यार ये कैसा सवाल है, यानी तुझे चाहिए ना ये पूछता कुशल के फर्द कितने हैं,
तूने पूछना ये पूछ नमाज का तरीका क्या है, तूने पूछना है ये पूछ कि कुरान की सूरतें कितनी है। इन बातों का इल्म नहीं होता और तरह तरह के सवाल लेकर एक दूसरे को हमने तो ऐसे। और वैसे भी मेरे हबीब ये कुरान के भी अल्फाज हैं कि अल्लाह ताला ने कसरत के साथ सवाल करने से मना फरमाया है। जो पहली कौम में एक कौम को इसी वजह से तबाह किया गया था, यानी अल्लाह का अज़ाब आया, पूरी कौम गर्म हो गई। उनका काम क्या था, तरह तरह उल्टे सीधे सवाल करते थे अंबिया। और आप इस बात का मकसद जाने कि इसका मकसद क्या है, यानी इल्म में होना चाहिए, लेकिन इसका मकसद अब कोई बताए तो सही नहीं। यानी मैं पूछता मुझे वुज़ू का फर्ज बताएं, जाहिर है इसका मकसद ये होगा मुझे वुज़ू का तरीका पता चलेगा, नमाज अदा करूंगा। लेकिन हुजूर की नानी जान का नाम क्या है, या हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की नानी जान का नाम क्या है, इसका मकसद क्या है, कभी ये भी तो सोचा है। वैसे उल्टे सीधे सवाल से परहेज करनी चाहिए, और बिलखसूस ऐसे सवाल कि जिनमें सहाबा के बारे में गुस्ताखी नजर आए, उस बंदे को भी रोके कि अपनी जुबान को लगाम दे। यानी बात बंदे आज नेट का दौर है ना, वो ढूंढ लेते हैं छोटे मोटे सवाल अहले तशय्युओं की तरफ से, कादियानियों की तरफ से इस्लाम पर बड़े सवाल जवाब है, और हमें ये भी नहीं पता होता कि जो सवाल कर रहा है वो बंदा कौन है। हम उनको तलाश करते हैं, फिर उलमा से मस्जिदों में जाकर अपने लोगों को ये तरह तरह के। मेरे पास भी ऐसे सवाल आए हैं हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में। मैंने नौजवानों को कहा इनसे परहेज करें, आप हक नहीं मानता, मैंने आज तक आपको मस्जिद में नहीं देखा, और आप एक सहाबी रसूल के बारे में ये अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं। अरे जिनको हजरत अमीर मुआविया वो हैं, अरे जिनको मेरे हबीब ने कुरान की वही लिखने के लिए यानी उनका महसूस करवाया था। हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मेरे नबी की वही लिखते रहे हैं। अल्लाह की तरफ से जो कुरान नाज़िल होता उनको लिखने वाले वो हजरत अमीर मुआविया थे। तो याद रखें ऐसे लोगों से जरा परहेज करें। और ये चूंकि नेट का दौर है, तो ये नहीं कि जैसा भी सवाल मिले हमारे नौजवान उसको ही कबूल करें, ऐसा कतई नहीं। हमने मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ा है, और हमें हर बात, और ये आखिरी बात है, ये जरा गौर करें, ये कुरान मजीद है यार, ये कुरान ये कपड़ा है, मैं इसको ऐसे रखूंगा ना, मुझे कोई नहीं कहेगा कि कार साहब क्यों रखा है, कोई नहीं कहेगा, क्या कहेगा, नहीं कहेगा। ये चादर उतार के नीचे रखें, कोई नहीं कहेगा, कोई बात नहीं। लेकिन इसी कपड़े का गुलाब बनाकर इसको इसके लिए फिर मैं ऐसे रखूंगा ना, आपने कहा कारी साहब ये क्या कर रहे हैं, और शायद आपका जो अंदाज हो ना वो भी अजीब हो, कारी साहब ये क्या कर रहे हैं, यानी क्या मकसद है कि इस आपको पता नहीं कारी साहब कि इसकी निस्बत कुरान से है। अरे जिसकी निस्बत कुरान से हो उसको नीचे नहीं रखते, तो मैंने कहा जिसकी निस्बत साहबे कुरान मुस्तफा से हो जाए उसको गाली नहीं देते, उसके दिल में अपने दिल में उसकी मोहब्बत रखा करते हैं। तो आज अगर कोई मेरा अदब करता है, क्यों कि हम कमली वाले की बात करते हैं, अगर हम आज बात करना छोड़ दें खुदा की कसम कोई हमसे मुंह भी ना लगाए। आज आप अदब करते हैं कुरान की वजह से, कुरान की वजह से, साहबे कुरान की वजह से। तो अगर आज 1400 साल बाद हमारा अदब है, तो जिन्होंने मेरे मुस्तफा से हर बार दिन भर कई बार मेरे मुस्तफा की ज़ियारत की, हर दमे मेरे मुस्तफा के साथ गुजारा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या उनका अदब नहीं है? हर दमे याद रखें उनका अदब है। खुदा की कसम मैं बांगिल तौर कहता हूँ, मैं सारी जिंदगी इसे मुसल्ले पर गुजार दूं, एक मरतबा मस्जिद से बाहर ना निकलूं, सारे 24 घंटे जहां रहूं, यहाँ आ जाऊं, और इसी मुसल्ले पर मुझे मौत आ जाए। मैं अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का मुकाम तो बड़ा है, मैं आखिरी सहाबी हजरत आमिर बिन तुफैल की बात करता हूँ, उनके कदमों के नीचे जो जर्रे हैं, मैं खुदा की कसम ये दावा करता हूँ उनके जर्रों के बराबर में नहीं हो सकता। और फिर सहाबा का तो मुकाम मर्तबा है, और मैं ऐलान करता हूँ मेरा जनाजा हो, ऐलान होना चाहिए कि जो बाज़-ए-अक़ीदा हैं मेरे जनाजे में जो गुस्ताखे से आते हैं उनको कत्ल की इजाजत नहीं, वो जनाजे में इसी में हमारी कबूलियत है। अरे हमें जो मुकाम मिला है वो सहाबा की वजह से मिला है, जो मुकाम मर्तबा मिला मेरे नबी के गुलामों की वजह से मिला है। आज तुझे इज्जत मिली है वो मेरे नबी के सहाबा की वजह से मिली है।
अगर हजरत इमाम हुसैन अपनी गर्दन को शहीद न करवाते तो आज हम इस तरह जिंदा ना होते। तो अगर आज हम छोटे मोटे लोग सहाबा की अजमत पर पहरा ना दें, उनकी नमूज पर पहरा ना दें, तो हमारे जीने का मकसद कोई नहीं। तो इसीलिए नौजवान भाइयों ये गौर करें, ऐसे जितने मौजूद हैं नेट पर, मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन उनसे परहेज करना बड़ा जरूरी है। उनकी महावरी से बचे। जिस तरह ये मिट्टी का वो मिर्जा जेलवी, बेशक उसके पास इल्म है, हम इल्म को नहीं मानते, हम ये कहते हैं इल्म जितना भी हो, जब अदब नहीं है इल्म को क्या करना है। वो सरेआम सहाबा के बारे में बकवास करता अपने बयानात में, उसके बयानात से भी परहेज करें। जो सुनते हैं वो परहेज करें, ये ना हो कभी आपका अकीदा खराब हो जाए। अभी ये याद रखें, अमल में कमी आ गई ना, अपने हबीब शफाअत के सदके हमें जन्नत में यकीनन मिल जाएगी। लेकिन अगर अकीदे में कमी आई ना, तो फिर हम क़यामत दिन पकड़े जाएंगे। अकीदे में कमी, अकीदा क्या है? सहाबा की मोहब्बत। अकीदा क्या है? आले नबी की मोहब्बत। अकीदा क्या है? मेरे मुस्तफा की मोहब्बत। अकीदा क्या है? हर नबी की मोहब्बत। अकीदा ये है किसी फजीलत वाले बंदे की शान में गुस्ताखी जायज नहीं है। अगर नमाज में कमी हुई, रब के हबीब के अपने हबीब के सच्चे माफ फरमाए। लेकिन अगर अकीदे में कमी आ गई ना, मैदान महशर में हम पकड़े जाएंगे। तो इसीलिए अपने अकीदे को मजबूत करें। अगर कोई आपके अकीदे को झंझोड़ना चाहता है तो आप उसको मजबूत करें। अकीदे का लुग़वी माना है गांड, यानी ये गांड। मैं एक खतीब साहब का बयान सुन रहा था, वो कहते हैं अकीदे का मतलब है गिरा बांधना, यानी ये गांड है ना, इसको जैसे जैसे खींचे ना ये मजबूत होती जाती है। और आपका अकीदा ऐसा हो जैसे लोग इतराज करें, आपका अकीदा मजबूत होता चला जाए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के सामने उन्होंने इतराज किया था कुफार ने कि रातों रात अर्श मौला पर कैसे कोई पहुंच सकता है। जब पता चला ना ये मेरे हबीब का फरमान है, तो आप फरमाने लगे हैं अर्श मौला तो कुछ नहीं, अगर इससे भी बढ़कर मेरे हबीब दावा करते सिद्दीक़, उसका भी इकरार करने के लिए दुआ के अल्लाह ताला मुझे और आपको शान सहाबा पर पहरा देने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हर दौर में सहाबा और अंबिया की नमूज पर पहरा देने की तौफीक अता फरमाए। वो तौफीक